Yes, students, today we are going to start English reader book, and as you see it's our unit 4, performing arts. We know there are different type of arts that we perform. Some are our professions, and other some are for fun. We do in leisure time in those activities, okay, and these all are called arts, okay. Now look at the pictures in the film photographic reel. एक photographic reel के अंदर हमें pictures दी गई. What do they show? Discuss with your partner. And okay, let's see the picture. And in the first picture we see that some ladies are sitting and they are playing some instruments, or tabla, there is harmonium, sitar, okay. So these are playing instruments and these are dancing, and then it's, who is it? He is a magician and he's making a trick of magic, and then these are singing, and this one is making sketch, we can say that it's a part of art and craft, and it is making I think clay modeling, we can say, or you know um, we can say he's making idols of clay or clay type material. And then here we can see he's painting, so it's painting, and these are the ladies of southern India, and we can see that's a part of Bharatnatyam. So the ladies are dancing, and then what is it? It is also, we can say, theater. Theater means these are performing a drama, or or a play. So we can say that these all are a part of arts. Okay. Do you know art refers to the various branches of creative activity such as painting, music, dance, etc. जो art है, various branches of creative activity, कोई भी creative activity की अलग अलग branches हैं, such as जैसे painting हो, music हो, dance हो, ये सभी art है. We can't say that art is only making sketches or painting. No, it's not only art. Various branches of creative activity, चाहे उसमें painting, music, dances, these all are forms of art. And then classify the pictures given in the part 1 into the following categories. पीछे जो आपको दी है उसमें एक तो है परफॉर्मिंग आर्ट्स, एक है फाइन आर्ट्स. परफॉर्मिंग आर्ट्स में क्या आ जाता है? जैसे सिंगिंग है, डांसिंग है, क्ले मॉडलिंग है. जो पीछे आपने पिक्चर्स देखी हैं, ये इनमें से कौन सी हम कहेंगे कि परफॉर्मिंग आर्ट, की आर्ट को परफॉर्म कर रहे हैं? जैसे ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये परफॉर्मिंग आर्ट है, ओके. एंड देन वी कैन से दैट it's only performing art, and it's fine art, it's fine art, and it's also fine art, and then it's performing art, and it's performing art, okay. These are categorized into two groups, performing art and fine art, and you have to write those into these columns, okay. Fine art and performing art. लाइक फाइन आर्ट के अंदर पेंटिंग,
ड्राइंग, क्ले मॉडलिंग, ये फाइन आर्ट्स हैं, और परफॉर्मिंग आर्ट डांसिंग, सिंगिंग, ये सब परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं. Now, conduct a survey in your class to find out what your friends like to performing arts. Talk to 6 students of your class and fill the required information. Some of you could include your teachers too. Conduct a survey in your class. अब आप क्लास में नहीं हैं, लेकिन आपके फ्रेंड्स हैं जो लास्ट ईयर आपके साथ पढ़ते थे, तो आप उनके बारे में सोच के, उनसे पूछ के आपने एक सर्वे करना है. आपने क्या करना है कि व्हाट योर फ्रेंड्स लाइक इन परफॉर्मिंग आर्ट. परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर आपके फ्रेंड क्या करना चाहते हैं? डांसिंग, सिंगिंग और ड्रामा, every child has its own talent. So you write here, you will write here name of the student, suppose name of the student, or you can write the teacher if you want, if you know the aspect of the teachers, the uh, what he or she likes, or name of the art form they like, कौन सी तरह की आर्ट की फॉर्म उन्हें पसंद है, आर्टिस्ट whom they know, और वो किस आर्टिस्ट को जानते हैं, मेल और फीमेल, ये उसके बारे में आपने लिखना है. सपोज़ कीजिए अगर आप मेरा यहाँ नेम, मेरे बारे में लिख रहे हैं, तो आप यहाँ मेरा नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद मुझे क्या पसंद है वो लिखेंगे, फिर मैं किसे जानती हूँ आप वो लिखेंगे, और फिर मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ वो आप यहाँ लिखेंगे. इसी तरह जैसे सपोज़ कीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है राजेश, तो यहाँ राजेश आएगा, और राजेश को क्या पसंद है, राजेश को सिंगिंग पसंद है, तो यहाँ सिंगिंग आ जाएगा. उसके बाद वो किसे जानते हैं, ओके, whom they know, और फिर वो मेल है या वो फीमेल है. राजेश मेल है तो यहाँ पर मेल आ जाएगा. ओके, लेट्स सी, मूव फॉरवर्ड. Pool the information collected by the students in the class and find out the following. अब आपने जो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन इस टेबल के अंदर जो भी फिल किया होगा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, उस इंफॉर्मेशन को जो भी स्टूडेंट्स ने कलेक्ट की है, अब नीचे के आंसर्स आपने ढूंढने हैं क्वेश्चंस के. क्या आर देयर एनी डिफरेंसेस इन द चॉइसेस ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन योर क्लास, कि जितनी भी आपकी क्लास में गर्ल्स आई और जितने भी बॉयज़ आए, उन सब की चॉइस में क्या कोई डिफरेंस है? लड़कियों को ज़्यादातर क्या पसंद होता है, डांसिंग, सिंगिंग वगैरह. लड़कों को ज़्यादातर क्या पसंद होता है? तो मतलब कोई डिफरेंस आया है. द मोस्ट पॉपुलर परफॉर्मिंग आर्ट इन योर क्लासेस, आपकी क्लास में सबसे ज़्यादा पॉपुलर परफॉर्मिंग आर्ट कौन सी है? यानी बच्चे ज़्यादा सिंगिंग पसंद करते हैं, प्लेइंग पसंद करते हैं, या कोई भी. प्लेइंग का मतलब मेरा है यहाँ पर प्ले करना, ओके. कोई ड्रामा, थिएटर वगैरह पसंद करते हैं, क्या करते हैं, ड्राइंग करना. Is there any student in your class who would like to adopt any form of art as a means of livelihood? क्या आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा भी है जो कि उस फॉर्म को, जो वो पसंद करता है, उसको मीन्स ऑफ लिवलीहुड, यानी कि जीने का साधन बनाना चाहता है? जीने का साधन मतलब कि आजीविका का साधन, ठीक है, रोज़ी रोटी का साधन. जैसे समझिए कि आप पेंटिंग करते हैं. अगर आप पेंटिंग सिर्फ शौक के लिए करते हैं, फॉर फन ओनली, तो आप उसे लिवलीहुड का पार्ट नहीं बनाएंगे. लेकिन अगर आप उसे लिवलीहुड का पार्ट बनाते हैं, इट मीन्स क्या है? इट मीन्स ये है कि आप उसी से पैसा कमाना चाहते हैं. अब बहुत सारे पेंटर ऐसे होंगे जिनका सपना पेंटिंग करना ही होगा,
तो वो अपने शोरूम्स वगैरह, आजकल तो पेंटिंग की वैसे भी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है, तो वो अगर पेंटिंग जैसे अपनी कोई शॉप करते हैं या उसी से पैसा कमाते हैं, अपनी पेंटिंग्स को सेल सेल करके और उसी से पैसा कमाते हैं, तो इट मीन्स पेंटिंग इज़ अ मीन्स ऑफ लिवलीहुड टू देम। तो आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा भी है जो जैसे अगर वो एक्टिंग करना पसंद करता है तो वो कहता है कि मैं एक्टर ही बनूंगा बड़ा होके, मतलब मेरी कमाई का साधन ही एक्टिंग होगा, या फिर वो सिर्फ फन के लिए करते हैं? ओके, द बडिंग आर्टिस्ट ऑफ योर क्लास आर, उसके बाद बडिंग आर्टिस्ट का मतलब जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं उस आर्ट में, तो उनका नाम आपने यहाँ पर लिखना है, जो जो भी आपके हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को अपने हिसाब से खुद फिल करनी है। ओके, म्यूजिक हैज़ been a source of entertainment for all ages. It is the universal language of mankind. जो म्यूज़िक है for ages means कोई चीज़ जो सदियों से चलती आ रही है, कि जो म्यूज़िक है वो बहुत सदियों से इंटरटेनमेंट का सोर्स रहा है। इट इज़ द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ मैनकाइंड, और ये मैनकाइंड की यूनिवर्सल लैंग्वेज है। सैड लॉन्गफेलो, ये लॉन्गफेलो एक राइटर है, इन्होंने लिखा है, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ द साउंड ऑफ अ रनिंग ब्रुक, द साउंड ऑफ produced by the rustling of the leaves, the chirping of the birds, the rumbling of the waves, the singing of a cricket in the grass and many more. अब ये जो हमें मिलता है नेचर के अंदर भी हमें म्यूज़िक मिलता है, जैसे जो रनिंग ब्रुक होती है, ब्रुक क्या होता है, जैसे झरना होता है, तो झरने जब चलता है तो उसकी जो आवाज़ होती है वो भी म्यूज़िक की तरह लगती है। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द रसलिंग ऑफ द लीव्स, जब पत्ते हिलते हैं उनकी जो आवाज़ आती है, बर्ड जब चर्प करते हैं उनकी आवाज़ आती है, रम्बलिंग ऑफ द वेव्स, हवा के चलने की आवाज़ आती है, वेव सॉरी, जो समुद्र की लहरें होती हैं उनके जो रंबलिंग करने की आवाज़ होती है, सिंगिंग ऑफ क्रिकेट के गाने की आवाज़ होती है, ठीक है, ग्रास के अंदर। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नेचर के अंदर भी म्यूज़िक भरा हुआ है, ठीक है। तो म्यूज़िक के बिना हमारी लाइफ बिल्कुल ही बोरिंग हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे एक डिटेल, रीड द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट वेनेसा माई हु इज़ एन इंटरनेशनली रिनोन्ड वॉयलिनिस्ट। अब इसके बारे में, वेनेसा माई के बारे में हम पढ़ेंगे, जो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर एक जानी मानी वॉयलिनिस्ट है, वॉयलिन बजाती है। ओके, क्लासिकल ब्लेंड्स विद पॉप। पॉप क्या होता है, जो आजकल का म्यूज़िक होता है, और क्लासिकल म्यूज़िक जो ओल्ड म्यूज़िक होते हैं, ठीक है। तो इसका ब्लेंड, ब्लेंड मतलब इन दोनों का मिश्रण। Let's get started. Vanessa Mae Nicholson, a British violinist, was born on 27th of October 1978. She is a Thai Chinese. She is Thai Chinese. वो Thai Chinese है। वेनेसा माई जो निकोलसन है वो एक ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड में रहने वाली वायलिनिस्ट है, और जो कि 1978 के अंदर इनका जन्म हुआ। शी इज़ थाई चाइनीज़। थाई चाइनीज़ का मतलब थाईलैंड प्लस चाइनीज़। शी वॉज बॉर्न इन सिंगापुर, वो सिंगापुर में पैदा हुई। हर मदर इज़ चाइनीज़, उसके जो मदर थी वो चाइनीज़ थी। एंड हर नेचुरल फादर इज़ थाई, और उसके जो फादर थे वो थाईलैंड के थे, तो इसलिए उसको थाई चाइनीज़ बोला जाता है। ओके, बट नाउ शी लिव्स विद हर मदर, लेकिन अब वो अपनी मदर के पोमेला के साथ, एंड हर स्टेप फादर ग्राम, और अपने स्टेप फादर ग्राम के साथ लंदन में रहती है। वेनेसा एट द एज ऑफ 8 स्टडीड एट द सेंट्रल कंजर्वेटरी ऑफ म्यूज़िक इन बीजिंग। जो वेनेसा है वो 8 साल की उम्र में ही, जब वो सेंट्रल कंजर्वेटरी ऑफ म्यूज़िक बीजिंग के अंदर स्टडी करती थी, एंड एट 10 और 10 के अंदर शी बिकेम अ स्टूडेंट ऑफ द रॉयल चैलेंज ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, और फिर लंदन में वो जो रॉयल चैलेंज कॉलेज था उसकी स्टूडेंट बन गई। शी लव्स बोथ क्लासिकल एंड पॉप म्यूज़िक,
वो दोनों को ही बहुत पसंद करती है, क्लासिकल भी और पॉप भी। द सेल्स ऑफ हर एल्बम्स हैव रीच सेवरल मिलियंस। जो उसकी एल्बम की सेल है वो सेवरल मिलियंस तक पहुंच गई है, बहुत मिलियन तक पहुंच गई है। वेनेसास फेवरेट आर्ट आर, जो वेनेसा के फेवरेट हैं, जो भी सिंगर उसके फेवरेट हैं, मोजार्ट, बीथोवन, चेस्लोस्की, बीटल्स, एल्विस प्रेस्ले, Michael Jackson. I also like this. Michael Jackson, he's my favorite also, personally. Prince and Paganini. ये सभी एल्विस प्रेस्ले, माइकल जैक्सन, ये ऑलमोस्ट जो है अमेरिकन सिंगर्स हैं और बाकी अलग अलग जगह के हैं, तो ये उसके फेवरेट थे। एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेनेसास म्यूजिक इज़ द फ्यूजन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक विद पॉप म्यूजिक। फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन होता है ब्लेंडिंग, मिक्सिंग। तो उसकी जो मेन पसंद है वो है पॉप म्यूज़िक के साथ क्लासिकल म्यूज़िक का मिक्स, यानी क्लासिकल भी हो और पॉप भी हो। फॉर विच शी हैज़ ऑल्सो incurred द wrath ऑफ सम ऑफ द टीचर्स। wrath क्या होता है? गुस्सा। तो जब उसने पॉप को और क्लासिकल को मिक्स कर दिया, तो देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्लासिकल पसंद करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब पॉप म्यूज़िक पसंद करते हैं। तो जब उसने ब्रांड कर दिया तो इससे क्या हुआ कि उसके जो कुछ टीचर्स थे उन इससे उनका गुस्सा, मतलब उसने उनके गुस्से को जगा दिया, उनके गुस्से को खड़ा कर दिया, क्योंकि वो गुस्सा हो गए कि या तो आप क्लासिकल करो या आप पॉप म्यूज़िक करो, आप ब्लेंड मत करो, क्योंकि उससे पहले ब्लेंड होता ही नहीं था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज फ्यूज़न म्यूज़िक? ये जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही है कि फ्यूज़न म्यूज़िक वही होता है जो ब्लेंडिंग ऑफ किसी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लासिकल और पॉप का ही ब्लेंड हो, किसी भी तरह का ब्लेंडिंग इसमें हो सकती है। इंस्ट्रूमेंट्स की हो सकती है, म्यूज़िक की हो सकती है, हारमोनी की हो सकती है, रिदम की हो सकती है, कोई भी। लेकिन जो ब्लेंड कर देते हैं हम, दो अलग अलग चीज़ों को ब्लेंड कर देते हैं, तो उसको फ्यूज़न म्यूज़िक बोला जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अभी आप इसे ही अच्छे से रीड करेंगे और जो टेबल आपको दी हुई है, हो सके तो आपको टाइम मिले तो आप उसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम आगे शुरू करेंगे। टिल देन, बाय बाय।